Good morning students. Today we will start a new chapter, that is perimeter. Firstly, we will discuss about open figures and closed figures. Firstly, look here, all these open figures. Open figures are those figures whose line segments or curve do not meet with each other. यहाँ आप देखेंगे दिस ओपन फिगर इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड दीज लाइन सेगमेंट डू नॉट मीट एंड दीज कर्व्स आर ऑल्सो दीज कर्व्स भी ये कर्व्स भी आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं. सो दीज आर द ओपन फिगर्स. Now look at these figures. These figures are closed figure. Closed figures are those figures whose line segments or curves are connected or meet with each other. They starts at a point. They start and end at a same points. If this closed figure start from this point, then it ends at also this point. तो इनका मीटिंग और इनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है वो सेम होता है. All these are called closed figure. Now observe all these closed figures. All these closed figures are made of line segments. And what are the closed figure made of? Curves. A curve that bends round. This closed figure is made of curve जो round होती हैं. This closed figure is made of curve. And all these closed figures are made of line segments only. तो curves कौन से होते हैं? A line that bends round. Now let us start worksheet 1. Here question 1 is tick the closed figures in the following. जो closed figures हैं उन पे हमने टिक करना है. Here A part is this figure is made of curve and these curve do not meet. So it is a closed. Is it closed figure or open? Ma'am, this is open figure. Yes, and we have to tick only those figures which are closed. And so we put the sign of cross. If this अगर ये cross figure होती है तो हम यहाँ पर tick का sign लगाते हैं. Okay. Now come to B part. This figure is made of line segments only, but these line segments start from this point and also ends at this point. Okay, जहाँ से start हो रही है वहीं पर ही ये end हो रही है. It means this one is a closed figure as line segments meet with each other. Okay, so we put tick in this box. Now come to part C. In C part, here is a curve and the curve meets with each other. Okay, here is यहाँ पर कोई ऐसा space नहीं है जहाँ कर्व मीट ना हो रहे हो. कर्व्स मीट आर मीटिंग, यहाँ एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं. सो वी पुट द साइन ऑफ टिक हेयर. दिस इज अ क्लोज्ड फिगर. नाउ कम टू पार्ट डी. इन पार्ट डी, here the line segments, this is made up of line segment, but line segments do not meet. It start from this point and ends at this point. So their starting point and ending point are different. So this is a open figure, not a closed figure. So we put the sign of cross. Now come to part E. In E part, here is also a curve and this curve is meeting. There is no space where curves are not meeting, so it is a closed figure. So we put the sign of tick. Now come to part F. In F part, the starting point of this figure is this and it ends at this point. So starting point and end points is not same. When starting point or ending point is same, then that is figure is called closed figure, and starting point and ending point is different, so it is a open figure. So we put the sign of cross. Now G कैसी फिगर है? Is it open or closed? Ma'am, it is a closed figure. Very good. It is a closed figure, but it is made up of line segment and curve. इसमें दोनों ही है, line segment भी है और curve भी है, but it is a closed figure, so we put the sign of tick. Now come to question number 2. Tick the figures or shapes made of line segments only. Here we have to tick only those figures or shapes which are made of line segments. Here A part is this figure is made of curve as
द लाइन दैट बेंड्स राउंड, जब लाइन बेंड हो जाती है राउंड देन इट बिकम्स कर्व. सो दिस क्लोज फिगर इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. सो वी पुट द cross as there is a curve. Okay, now come to part B. In this part B, this is a closed figure and this figure is made up of line segments as there is not curve, no any line bend round. कोई भी line ऐसी नहीं है जो round हो रही हो. Okay, so we will put here tick, the sign of tick. Now come to part C. Here these two line segments, there are two line segments but this one is the curve. This closed figure is made up of line segments and curve. इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, curve भी है और line segments भी है. So we put here cross as we have to tick those figures which is made of line segments only. सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुई फिगर पर ही हमने टिक करना है. ओके, नाउ कम टू पार्ट डी. दिस फिगर इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, सो वी विल पुट द साइन ऑफ टिक. नाउ कम टू पार्ट ई. दिस फिगर इज ऑल्सो मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली, सो हेयर वी विल पुट द साइन ऑफ टिक. नाउ कम टू पार्ट एफ. दिस इज अ क्लोज्ड फिगर बट मेड बाय अ कर्व, क्योंकि पूरा ही राउंड है ये. ओके, सो दिस इज अ कर्व. हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्रॉस. नाउ कम टू पार्ट जी. अब आप बताइए ये फिगर कैसी है, लाइन सेगमेंट से बनी है या कर्व से? मैम कर्व से. कर्व से बनी है. क्यों? क्योंकि ये बेंड हो रही है, ये लाइन मुड़ रही है, राउंड हो रही है. सो वी विल पुट द साइन ऑफ क्रॉस हेयर. नाउ कम टू पार्ट एच. दिस फिगर इज मेड ऑफ line segments. Very only. good. Right, line segments only. So we will put the sign of tick here. Now question number 3. Draw the following. A part is two closed figures. Yeah, this question you will do in your fair notebook. Here we have to draw two closed figures. हम कैसी भी closed figure draw कर सकते हैं, चाहे वो line segment से बनी हो या फिर curve से बनी हो. We can draw both of the closed figures. Firstly, we draw a curved. जैसे आपको अच्छी, जो भी शेप आपको अच्छी लगे, क्लोज शेप, आप उसी शेप में ही क्लोज फिगर ड्रॉ कर सकते हो. दिस वन इज़ द फर्स्ट क्लोज फिगर और सेकेंड क्लोज फिगर है वो आपने खुद से ड्रॉ करनी है. नाउ कम टू पार्ट बी. हेयर वी हैव टू ड्रॉ टू ओपन फिगर्स. सो फर्स्टली आई हैव ड्रॉ दिस फिगर. This is open figure with curve. You can draw this open figure by the line segments also. आप line segment से भी ड्रॉ कर सकते हो और जो सेकंड फिगर है ओपन फिगर, ये आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से. जो भी फिगर आपको अच्छी लगे ड्रॉ करने में, लेकिन वो ओपन होनी चाहिए, वो आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो. तो बेटा यहाँ जो फर्स्ट पार्ट में मैंने ओपन फिगर ड्रॉ की है, आपको जो भी अच्छी लगे आप इसे चेंज भी कर सकते हो. आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ओपन फिगर ड्रॉ कर सकते हो. आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ड्रॉ की है आपने वही ड्रॉ करनी है. ओके, नाउ कम टू पार्ट सी. हेयर वी हैव टू ड्रॉ टू क्लोज्ड फिगर्स. टू क्लोज्ड फिगर्स using line segments only. Two closed figures using line segments only. Okay, here first question is we have to draw closed figure using line segments only. You can draw a triangle, you can draw a square, you can draw a rectangle. कोई भी फिगर आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो. कैसी होनी चाहिए वो? विद लाइन सेगमेंट होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम हो. दैट फिगर्स आर कॉल्ड क्लोज फिगर. और जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपने खुद से ड्रॉ करना है. और आपने अगर फर्स्ट पार्ट में आपके मन में कोई और क्लोज फिगर आ रही है तो आप कोई और क्लोज फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो. तो बेटा हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो चुका है. तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपने
वर्कशीट 1 कंप्लीट करनी है, जिसमें क्वेश्चन 1 and 2 यू विल कंप्लीट इन योर बुक एंड क्वेश्चन नंबर 3 यू विल डू इन योर फेयर नोटबुक। एंड बेटा इस वर्कशीट में आज हमने क्या किया, हमारा न्यू चैप्टर था ये पेरीमीटर का, जिसमें आज हमने ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर का कंसेप्ट को क्लियर किया था। ओपन फिगर्स कौन सी थी? ओपन फिगर्स आर दोज फिगर्स विच आर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स और कर्व बट दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। लेकिन उनके जो लाइन सेगमेंट्स थे या कर्व थे वो कहीं पर भी आपस में मीट नहीं करते थे। ओके एंड जो क्लोज्ड फिगर्स थी, उन क्लोज्ड फिगर्स में क्या था, वो कर्व से बनी हो या फिर लाइन सेगमेंट से बनी हो, बट दे स्टार्ट फ्रॉम जिस भी पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही थी वो उसी पॉइंट्स पर ही आके एंड हो रही थी। उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम था, तो वो कैसी फिगर्स थी? क्लोज्ड फिगर थी। और मैंने आपको कर्व के बारे में बताया था। कर्व कैसा होता है? कर्व वो होते हैं अ लाइन दैट बेंड्स राउंड, जो राउंड घूम जाती है, गोल हो जाती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। उसके बाद हमने किया था कि ऐसी लाइंस क्लोज फिगर्स जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी की है। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्कशीट 1 कंप्लीट की थी, और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो मेन टॉपिक है पेरीमीटर, नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बेटा आपका आज का होमवर्क यही है कि आप वर्कशीट 1 कंप्लीट करोगे। ओके बेटा, अब हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपकी क्लास का टाइम अभी बहुत है। तो अब आपने क्या करना है, हमने अपनी क्लास के 35 मिनट्स का जो हमारा पीरियड है मैथ्स का, उसको हमने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है सभी ने, कि आप 12 का टेबल लर्न करोगे ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड में ही आप 12 का टेबल लर्न करोगे, और लर्न करने के बाद अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाओगे जिसमें आप टेबल रिसाइट कर रहे होगे, और उस वीडियो को आपने मुझे भेजना है अपने इस मैथ्स के ही पीरियड में। ओके, मैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ही आपका टेबल सुनूंगी। तो बेटा जिन बच्चों का टेबल मेरे पास नहीं आएगा, टेबल की रिकॉर्डिंग जो नहीं आएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इट मीन्स वो अपना काम डेली नहीं कर रहे हैं, मैथ्स की क्लास डेली नहीं लगा रहे हैं और टाइमली नहीं लगा रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो आपका पीरियड का टाइम है, मैथ्स के पीरियड का टाइम, उसी टाइम पे आप रेडी होकर के क्लास अटेंड करोगे। उसी टाइम में ही आपने टेबल लर्न करनी है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके इस टेबल को रिसाइट करते हुए मुझे सेंड करनी है। तो आज से इससे क्लियर हो जाएगा आपका कि कौन से बच्चे क्लास लगा रहे हैं और कौन से बच्चे क्लास नहीं लगा रहे। ओके बेटा, तो आपने ड्यूरिंग दैट आपके पीरियड में ही आपने मुझे अपनी टेबल की वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।